ओके, आप सबको एक टोन सुनाई दिया, योर मीटिंग इज रिकॉर्डिंग करके, गेटिंग रिकॉर्डेड ऐसा करके? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। कई बार फीडबैक आता है उसका एंड कई बार नहीं आता। ओके, कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। स्क्रीन शेयर हो रहा है? विजिबल सर। यस सर, विजिबल। Yes. uh, we have a lecture plan of 25 days, right? And out of those 25 days, we had to cover almost 25 topics. Okay? That is roughly 20 topics, if I say rightly. Out of 25 days, 20 days shall be, you can say, master classes. You cannot miss these 20 days if you want to continue further. And these 5 days, as you can see, these are the just a description about the definitions, about some topics which are being asked in part 2. So these 5 lectures will be given for part 2 preparation and all. Although we need to cover part 1 and part 2 on daily basis, we cannot miss out the things like कि पहले हम लोग part 1 पढ़ लेंगे in 15 days and last 10 दिन हम लोग part 2 पढ़ लेंगे. No, it will not work like that. We need to cover part 1 and part 2 on daily basis. ठीक है? And the topics is being started in a proper manner. As you can see, like if I had spent 2 days of lecture, ठीक है, अगर मैंने 2 दिन क्लास लिया है, then these topics must have been covered yet, right? Ajad, am I right? If I had covered 2, तो ये सारे topics हमने अभी तक देखे हैं, right? Out of these 2 days. यस सर। So everything यस will सर। be go in a planned manner. If I had completed 3 days, then these these 8 to 10 topics will be covered. So you can track and you can monitor your progress as per yon. Out of these topics, how many of you have covered actually? On how many topics you are having doubt? So this is the plan for our classroom, right? From 7th Jan, ठीक है, you can make it compulsory if you wish to continue, so that from 7th January onwards I will continue as per the plan, and that will be a scheduled classes till 7th Jan. You can join as a demo, or if you wish to have some lookout over the classroom, then you can come till 7th Jan. After that you should be taking admission and you should go ahead with the regular classroom program. Okay. Fees for the entire classes is 4500 as usual. I used to publish on the websites also that fees is 4500 for the entire session. If you wish to complete, if you have complete in only one attempt, then it will be 4500 for you only. But somehow if you fails in first attempt, or if you wish to prepare for a month and then you want to apply later on, not now only, then this 4500 fees is on credit basis. You can use it further. Like if you want to attend as many sessions as you want, you can continue with that. There is no extra charges for upcoming classroom programs and all. तो वन टाइम पेएबल है, बाद में आप जितनी मर्जी चाहो पढ़ाई करो. ओके सर। With topic, because everyone is well known to the RT introduction and all, so I don't think further more introduction is required. Just let me, I need to cover them also. Okay, no more people. ठीक है. Okay, one basic thing I would like to tell about my classroom program, especially that you cannot see more than 5 to 6 student in a session. 5 से ज़्यादा student तो नहीं रहते हैं, because I mainly focus on AME people, and some of the pilot candidates, yes, we had, and they had passed the examination and they left the group and all. So basically we are focused on AME, and 5 से 6 से ज़्यादा student नहीं रहते हैं, and especially this thing are very fruitful for us. Like we have a good record on you can say success, and we are having very interactive section throughout the session. क्योंकि जब 10-12 स्टूडेंट होने लगते हैं तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है, राइट? आपको क्लास में इंटरेक्टिव होने का टाइम कम मिलता है. सो दिस वन इज द प्लस पॉइंट विद अस कि 5 से 6 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहते हैं, तो आपको हमेशा इंटरेक्टिव और क्लास में आपको अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं.
ठीक है. So this one about the program and all. So we'll start by the topics as per our plan and we'll go gradually. धीरे धीरे हम लोग आगे move करते हैं. Like yesterday we had described the rules of 4 Ws. ठीक है. जो हम आंसर करते हैं इन आरटी, ठीक है, दैट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. ठीक है. Our answer writing shall be in a format so that they will follow the rules of 4 Ws. ठीक है. How? Just have a little understanding. Suppose I am calling to Mr. Azad, ठीक है, and I need some kind of notes, you can say. Suppose I need notes on module 13, right? You are having module 13 aircraft systems nowadays, right? So how this call will go? Hello, Mr. Azad, Ankush this side. I need notes of module 13. ठीक है. So what I told, hello, Mr. Azad means I give attention to him first. Ankush this side, that is W2. ठीक है. And then I told I need notes of module 13. This is the correct way of talking always. जब भी आप किसी को कॉल करते हो, then try to take their name first. Hello, Mr. Azad. Hello, Mr. Balwan. And then you need to take your name. Who are you? I am Mr. Ankush. ठीक है. और just take an example of very common nowadays. जब फ्लिपकार्ट से कोई भी कुरियर बॉय या कोई भी डिलीवरी एजेंट आपके पास कुरियर डिलीवर करने आता है, हाउ दे कॉलिंग? दे विल कॉल मिस्टर बलवन, फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूं, आपका कुरियर था सर, एड्रेस के नीचे खड़ा हूं, लाइक दिस दे विल टेल, राइट? So they told Mr. Balwan means whomsoever they are calling, they had taken the call sign of them first. ठीक है. कॉल साइन का मतलब होता है द साइनेज विथ whom somebody calls you. आपको किस नाम से कॉल किया जाए, आपको किस नाम से बोला जाए. ठीक है. उसके लिए जो इंग्लिश का वर्ड आता है दैट इज कॉल साइन. तो अपने एयरक्राफ्ट के केस में जो अपने एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन मार्क्स होता है, सपोज द एयरक्राफ्ट इज विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक, सो दिस विल बी नोन एज द कॉल साइन. ठीक है. इन अदर वर्ड्स द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑल्सो नोन एज टेल नंबर समटाइम्स. ठीक है. एंड नॉट ओनली दिस, अगर शेड्यूल एयरलाइन है तो कई बार आपका फ्लाइट आईडी दिखता होगा, आई फ्लाई 175. This will also be known as your call sign. ठीक है. This topic I'll cover later, but for now just to try to understand the term somebody can call you, that is known as call sign. आपको किस नाम से बुलाया जाए, that is your call sign. So whenever we are making answer in RT, that should be in a format. What is the format? First we will use W1, whom I want to call. ठीक है. Whom are you calling? That should be on first place. And then who are you? Your identification, your call sign will be on second place. Third place will be captured by the purpose of call, intention of call. Okay, whatever the request you want to make, whatever the information you want to gather, that will be your purpose of your call. And then W4 here is where are you? But this word doesn't mean about your position. ये आपके position को indicate नहीं करता है. This word indicates the frequency or channel that is being used. ठीक है. W4 is important only for the examination perspective. रियल लाइफ में आपको W4 यूज करता हुआ कोई नहीं दिखेगा. ठीक है. What W4 actually means? Suppose I want to contact Delhi Tower and Delhi Tower's contact frequency is 118.5. So in examination I need to speak this frequency. ये एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है. हाँ, if you are having less time you can skip these things, but for the examination point of view only we are using the frequency on which I had tuned to a ATC. तो एग्जामिनेशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, W4 का यूज करेंगे. रियल लाइफ में इसका यूज नहीं के बराबर होता है, एक्चुअली नहीं ही होता है. एंड एग्जामिनेशन भी आप इसको स्किप कर सकते हो ऑन अ केस टू केस बेसिस. आई विल कम टू दैट टॉपिक कि व्हेन यू कैन skip saying frequency, but for now you need to understand shall have at least 4W.
ठीक है, आपके कॉल में इन चारों डब्ल्यू का प्रेजेंस होना चाहिए। कौन कौन से डब्ल्यू हैं? whom are you calling, who are you, why are you calling, and where are you. This where indicates frequency. Am I clear on this topic now? Yes, sir. Okay. Next thing is how to raise a station. ठीक है, sometimes you will come on a situation where you need to raise the station. Raising a station is simply like a knocking the door. ठीक है, whenever you want to establish communication with ATC, the first and most basic thing you can do, you can simply raise the station. ठीक है, where raising a station involves only W1 and W2. Suppose you want to contact Mumbai ground, ठीक है, or you want to contact Mumbai tower, then you will call the Mumbai tower and you will tell your identification. That's it. आप सिर्फ ये दोनों W आप बोल दोगे, it means you have raised a station to Mumbai tower. ठीक है, and in reply, Mumbai tower will also follow the rules of 4W. How? They will tell your name first, means you became W1 for them. W1 क्या कहता है? whom are you calling. तो टावर किसको कॉल कर रहा है? आपको. You became W1 and he himself a W2. Station. ठीक है, to raise a station, simply knock the door and let it be. Let the reply come, let the response come, and then you can go ahead. ठीक है, तो raising a station का भी यूज आएगा, we'll cover it further. After this, the very popular check and very basic check is readability check. ठीक है, in real life scenario, whenever we want to contact with ATC, we always do readability check. हम लोग raising a station का आदत छोड़ चुके हैं. ठीक है, we don't have habit with raising a station. We always do readability check. Mumbai Tower, Victor Tango, Romeo Sierra Mike, how do you read? ये अपना कॉमन हो गया है आजकल. हम लोग रीडेबिलिटी चेक करते ही करते हैं, फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन चीज में, राइट? सो फॉर द रीडेबिलिटी चेक, something is known as readability scale. ठीक है, suppose you might have seen many of the reality shows, or you might have seen many of the you can say the things where judges are there. ठीक है, some kind of performance you can see. So there you can observe one contestant has performed their act. ठीक है, अगर वो सिंगिंग कर रहा है तो वो गाना गा देगा, एक्टिंग कर रहा है तो दे विल परफॉर्म देयर एक्ट. ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस, जजेस आर गिविंग देम नंबर्स कि आपको मिले 8 आउट ऑफ 10, आपको मिले 9 आउट ऑफ 10, सॉरी, आपको मिले 10 आउट ऑफ 10. व्हाट डज इट रियली मीन? It means they are giving a score to your performance. Similarly, the basis on the strength of communication, ठीक है, the strength of reception, the user who are on receiver end, ठीक है, जो भी receiver के end पे है वो user is going to rate out of 5 to the transmitter. जो कोई भी ट्रांसमिट कर रहा है उसको रेट करेगा आउट ऑफ 5. ठीक है, आउट ऑफ दिस 5, इफ यू गेट 5 on 5, it means you are perfectly readable. If you get 4, means you are readable, good enough. ठीक है, 4 and 5 में उतना ही डिफरेंस है जितना हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो आवर टीचर यूज टू गिव गुड एंड वेरी गुड, राइट? वी यूज टू रिसीव ना, if our handwriting is also good and our answer is also good, teacher was giving very good. कि हैंडराइटिंग भी अच्छी है और आपकी आंसर भी अच्छी है. बट सपोज आपका आंसर अच्छा है, बस हैंडराइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो टीचर यूज टू गिव गुड. यू आर एट गुड मीन्स यू आर 90% परफेक्ट, 95% परफेक्ट. बट वेरी गुड मीन्स 100%, 98%, नियर टू 100%.
So if the communication is loud and clear enough, ठीक है, very nice to listen, very nice to understand, 5 out of 5. 4, readable, but it could be more better, ठीक है, then that is readable. Readability scale 3, someone is readable with difficulty. What kind of difficulties can be there? Suppose I am speaking, sometimes vehicle passes near to me. अभी नीचे बिल्डिंग के बाहर कोई व्हीकल पास करता है, you are receiving horn, you are receiving vehicle sound, means some kind of noise is there, some kind of crackling sound will be there. You are transmitting from aircraft, engine का noise रहेगा. So such difficulties can be noises. If noises are induced in your communication, you can say reading U3. If your voice is breaking, someone is readable now and then. कभी वॉइस आया कभी वॉइस गया. लो नेटवर्क एरिया में जब आप बात करते हो, द एग्जैक्ट कम्युनिकेशन यू आर रिसीविंग, जो कट कट के आवाज आती है ना, दैट मोमेंट इज ऑन रीडेबिलिटी स्केल 2, ठीक है. एंड इफ समवन इज अनरीडेबल, मीन्स कई बार होता है ना, आप कॉल करते हो तो आप इधर से हेलो हेलो बोलते रहते हो, उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, बट कॉल इज कनेक्टेड. दैट टाइम यू कैन से यू आर अनरीडेबल. नॉर्मली हम लोग बोलते भी हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, ट्राई टू कम इन टू नेटवर्क जोन, और कॉल कट के फिर से कॉल करो. दैट इज रीडेबिलिटी स्केल 1. So these are the 5 readability scale out of which we can mark a score to a transmitter, and whoever is going to give a score, that will be on receiver end. Am I clear on this topic? Yes, no, anything? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So now we'll move to our next topic, ठीक है, that is readability check. But before going on readability check, we need to understand the hierarchy of ATCs. ATC के पास कौन कौन से ऑफिस हैं, ठीक है, किसको किस नाम से बुलाया जाता है, that need to be understand nicely, ठीक है, कि ATC में कितने डिपार्टमेंट हैं, किसका क्या ड्यूटी है, किसका क्या काम है, right? So we'll have a look on that. Roughly, if you are working on airport, then you might have observed tower, right? Very popular. आपने टावर कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा. अगर वो कंट्रोल्ड एरोड्रोम है, ठीक है, तो वहां पे टावर एस्टेब्लिश्ड रहते हैं. अगर कंट्रोल्ड एरोड्रोम नहीं है, एयर स्ट्रिप है, छोटा सा एयर स्ट्रिप है, देन देयर मे बी नो एटीसीज. तो आप कभी नहीं, अगर आप हेलीपैड पे काम करते यू माइट नॉट ऑब्जर्व्ड, बट इफ यू आर वर्किंग ऑन एयरपोर्ट, आपने टावर तो जरूर से जरूर देख रखा होगा, राइट, एज अ नेम ऑफ एटीसी. Confirm if my screen is visible to all. Is this visible to all? Yes, sir. Visible. ठीक है. So ATC बिल्डिंग, ठीक है, जहां भी किसी भी एयरपोर्ट पे हो, उसका एक ड्यूटी रहता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि दे कैन लुक ऑल ओवर द एयरपोर्ट, दे कैन ऑब्जर्व each and every area of airport, ठीक है. It shall be visible to them either with their naked eye, with their bare eye, or they can use binoculars, ठीक है, दूरबीन, बाइनोक्यूलर्स का यूज करके दे कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरी एरिया. हर एक मूवमेंट पे वो नजर रख सकते हैं. इतने हाइट पे या ऐसे प्लेस पे एटीसी का बिल्डिंग बनाया जाता है, राइट. अब एटीसी में कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइसली. जो पूरे एटीसी का बिग बॉस होता है, ठीक है, आपके भी कंपनी में होंगे ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट, राइट. If you are working suppose in Indigo or Air India, there must be some kind of person who is known as general manager maintenance या फिर head of maintenance, जो कि मेंटेनेंस नहीं करते हैं. वो आपको कभी हैंगर में दिखेंगे भी नहीं. If you want to meet them, you will hardly get a chance to meet them, ठीक है. AISL का जो बेस मेंटेनेंस मैनेजर होंगे, ओवरऑल जनरल मैनेजर मेंटेनेंस या फिर हेड ऑफ द मेंटेनेंस, हेड सेक्रेटरी ऑफ द मेंटेनेंस, आपने कभी उनको लाइव देखा भी नहीं होगा, राइट.
दे आर ऑफ द पिक्चर्स बट दे आर इनटू द रोल्स। वो परफॉर्म कर रहे हैं कुछ ना कुछ ड्यूटी जो कि आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है या आपको पता नहीं चल पा रहा है। दे आर बिग बॉस, राइट। सो पूरे एटीसी का बिग बॉस जो होता है, दे आर रेडियो कंट्रोलर्स, एफआईआर कंट्रोलर्स, उनको बोला जाता है एफआईआर कंट्रोलर्स। ठीक है। और उनका कॉल साइन होता है, उनको हम किस नाम से बुलाएंगे? रेडियो। ठीक है, RDO, रेडियो। दे आर 4 इन इंडिया। टोटल 4 एफआईआर रीजन है ना अपने पास, बेसिकली 4 ही है। सो देर आर 4 एफआईआर कंट्रोलर्स, 4 रेडियो कंट्रोलर्स। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, 4 प्लेसेस पे हैं रेडियो कंट्रोलर्स। और एज आई सेड कि जो आपके हेड ऑफ मेंटेनेंस होंगे उनको आपने कभी मेंटेनेंस करते देखा भी नहीं होगा। सिमिलरली इनसे आप VHF पे बात ही नहीं कर सकते। दे आर अवेलेबल ऑन HF। ठीक है, तो ये है बिग बॉस जो कि फ्रीक्वेंटली आपके रोल में नहीं है, बट दे आर हैविंग लुक आउट ओवर ऑल। ठीक है, इनसे कम्युनिकेशन करने के लिए HF फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। दे आर नॉट अवेलेबल ऑन VHF। नाउ टू कम्युनिकेट ऑन VHF अपने पास कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से ऑफिसेस हैं? जस्ट हैव अ लुक। सबसे छोटा ऑफिस, नॉट इन द सेंस ऑफ छोटा, इन द सेंस ऑफ दियर रोल्स स्टैंडर्ड, उनको कितना हेडेक लेना है, कितना टेंशन लेना है, इस बेसिस पे जो सबसे हायरार्की में लोअर पोर्शन पे रहते हैं, दे आर एप्रॉन कंट्रोल्स। कई एयरपोर्ट पे आपको एप्रॉन कंट्रोल मिलेंगे, यूजुअली नहीं मिलेंगे। जब बड़े एयरपोर्ट हो जाते हैं जहां पे 2 से 3 एप्रॉन होता है, प्लस एटीसी को कोई एक प्लेस से सारे एप्रॉन विजिबल नहीं होते हैं, उस केस में एप्रॉन कंट्रोलर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। यू विल टेक केयर ऑफ एप्रॉन नंबर 3, यू विल टेक केयर ऑफ एप्रॉन नंबर 4। एप्रॉन अगर हमको मुंबई एयर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही सर है। ब्रेक कट हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। यू आर नॉट ऑडिबल। got it exactly at 9:30 I have reported to the Wi-Fi team also कि exactly at 9:30 around 10 o'clock I am getting some network glitch। अभी आ रही है आवाज? कैसा है अभी? नॉट क्लियर, राइट? अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। देयर इज सम नेटवर्क ग्लिच। हाँ, एग्जैक्टली एट 9:30 पे ये हो रहा है कंटिन्यूअसली। मैंने लैंडलाइन ब्रॉडबैंड बॉल को भी रिपोर्ट किया, इवन विद आई हैड रिपोर्टेड टू जियो आल्सो। होपफुली 1-2 दिन में इसको करेक्ट करा लेंगे, अदरवाइज आई विल बी स्विच टू एयरटेल। ठीक है, सो टिल द टाइम आई विल बेग योर पार्डन, इसको मैं अभी करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली एट 9:30 और 10 o'clock के अराउंड आता है ये ग्लिच। ठीक है, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस इनटू आवर अटेंशन। आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बताना, मैं उस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा अगेन। ठीक है, ओके सर। नाउ लेट मी नो इफ स्क्रीन इज विजिबल एंड माय ऑडियो इज रिसीविंग वेल टू यू। अभी आ रही है आवाज अच्छे से फॉर दिस मोमेंट? यस सर, स्क्रीन भी शेयर हो रहा है? विजिबल सर, स्क्रीन विजिबल एंड ठीक क्लियर ऑडिबल। ठीक है। नाउ apron control, if I want to contact apron control of Mumbai airport, we need to say Mumbai apron। ठीक है, देन आता है सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर्स। ठीक है, सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर्स को जनरली बोला जाता है ग्राउंड। ठीक है, अगर दिल्ली एयरपोर्ट के सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर से आई वांट टू कॉन्टैक्ट, देन आई नीड टू से दिल्ली ग्राउंड। ठीक है, नाउ जो कॉल साइन होता है, सपोज आई वांट टू कॉन्टैक्ट मुंबई रेडियो, सो आई कैन राइट मुंबई रेडियो। ठीक है, RDO शॉर्ट फॉर्म ऑफ रेडियो, मुंबई एप्रॉन। सिमिलरली जब मुंबई ग्राउंड बोलेंगे, देयर वी हैव ऑप्शंस, वी कैन राइट मुंबई ग्राउंड एज अ फुल। ठीक है, और वी कैन राइट मुंबई SMC, सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राउंड।
बट बोलना पड़ेगा ग्राउंड। लिखने में आप लिख सकते हो मुंबई एसएमसी, लेकिन बोलना है मुंबई ग्राउंड। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू स्पीक, व्हाट यू नीड टू प्रोनाउंसिएट, मुंबई ग्राउंड। बट इन राइटिंग वी आर हैविंग ऑप्शंस कि वी कैन राइट एसएमसी। देन इट कम्स एरोड्रोम कंट्रोल टावर। ठीक है, एक्सक्यूज नाउ मी सर। ग्राउंड, यस यस गो हेड। सर अप्रोन और ग्राउंड में क्या फर्क है सर? हाँ, ओके। नाउ ग्राउंड कंट्रोलर्स वहां पे अलॉट किए जाते हैं जहां पे आपके एक टर्म आता है दैट इज नोन एज मीन बिजी आवर्स। अगर आपके एयरपोर्ट पे एक घंटे में 30, ठीक है, 25 to 30 एयरक्राफ्ट ऑपरेट होता है, इन दैट केस टावर को फ्री किया जाता है ग्राउंड ड्यूटी से। इन दिस केस टावर को ग्राउंड ड्यूटी से हटा के वहां पे एसएमसी लाया जाता है, दैट इज ग्राउंड कंट्रोलर्स। नाउ कहीं कहीं पे जो एप्रॉन्स होते हैं देयर आर मल्टीपल इन नंबर्स, 3 एप्रॉन रहेंगे, 4 एप्रॉन रहेंगे। ठीक है, और ग्राउंड कंट्रोलर्स जो सिचुएटेड होते हैं दे आर सिटिंग विथ टावर्स एटीसी बिल्डिंग में। इफ कंट्रोल ऑफ ऑल द एप्रॉन्स इज नॉट एक्सेसिबल बाय द सिंगल कंट्रोलर ऑफिस, तो वहां पे एडिशनल ऑफिस पुट किए जाते हैं एप्रॉन कंट्रोल। एप्रॉन कंट्रोल आपको पार्किंग बे अलॉट करेंगे, एक खास एप्रॉन का मूवमेंट इनसाइड एन एप्रॉन, आपकी जितने भी जीएससी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनका एलोकेशन, कि इसको रखो आप बे नंबर 10 के पास। ठीक है, इसको कौन एलोकेट करेगा? एप्रॉन। आपको टो करना है विद इन द एप्रॉन, किनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा? एप्रॉन कंट्रोलर से। ठीक है, सो वेयर ट्रैफिक्स आर मच, ऑपरेशंस आर ह्यूज, तो ग्राउंड के कुछ ड्यूटी को एप्रॉन को दे दिया जाता है। ओके सर। मैं क्लियर? बेसिकली ड्यूटी सेम है कि ग्राउंड मूवमेंट ही देखना है, बट ऑपरेशंस हाई हो गया, लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है एक ऑफिस से, तो एक पर्टिकुलर एप्रॉन के लिए एप्रॉन कंट्रोल बना दो। ठीक है, वो उसका देखभाल कर लेगा। दिल्ली में अप्रोन है क्या सर? दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। मुंबई में? आजाद, इज देयर इन, हैव यू सीन देयर मुंबई एप्रॉन कंट्रोल? नो सर। नहीं देखा है, ठीक है, मुंबई में है, देयर इज एप्रॉन कंट्रोल इन मुंबई। दिल्ली में नहीं है। दिल्ली का जो एटीसी बिल्डिंग है ना, अभी न्यू बना है, लाइक 7 years अगो, हम्म। वहां से सारा यस सर। कंट्रोल हो जाता है, वो विजिबल है। अभी न ये पता नहीं टर्मिनल 1 का अगर जीएमआर वालों ने इनॉग्रेट किया होगा एंड इफ दैट इज ऑपरेशनल, तो उसके लिए शायद अलग से एप्रॉन कंट्रोल बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि वो वाला एरिया एक्सेसिबल नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना पड़ेगा। ओके सर ओके। इन आरटी एग्जामिनेशन स्पेशली आपको एप्रॉन कंट्रोल का यूजेज नहीं आएगा, आप नहीं देखोगे आरटी में कहीं भी, क्योंकि दीज थिंग्स आर ऑप्शनल, जरूरत पड़ी तो बना दिया गया, राइट? इन मुंबई देयर इज एप्रॉन कंट्रोल। I'll share some pictures so that you can understand. So you are having ground controllers. After this, you are having aerodrome control tower, that is known as tower. ठीक है, and you can write TWR as a short form. Suppose you need to contact Mumbai Tower, then you can write Mumbai Tower. अब टावर का क्या ड्यूटी है? एज आई वाज सेइंग, टावर का बेसिकली ड्यूटी है लैंडिंग, डिपार्चर, नियर टू द रनवे। ठीक है, अगर ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हाई है तो टावर का लुकआउट रहेगा रनवे एंड दियर विसिनिटी ओनली। ठीक है, रनवे एंड दियर विसिनिटी, लैंडिंग एंड डिपार्चर्स एंड इनिशियल क्लाइंब फेजेस अप टू 4000 5000 फीट, इतना सारा काम टावर देखेगा, इससे ज्यादा टावर नहीं देखेगा। इना बिजी सर ऑडिबल। हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, यू आर नॉट ऑडिबल।
ओके, हाँ, ऑडिबल नाउ? अभी ठीक है ऑडियो? हाँ यस सर, अभी आएगी। एंड स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक है। सो टावर का बेसिकली लुकआउट है नियर टू द रनवे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके फ्लाइट प्लान के रिलेटेड डिस्कशंस, ठीक है, आपके फ्लाइट प्लान के रिगार्डिंग किसी भी टाइप का चेंज, किसी भी टाइप का रिवीजन, किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन, ये सारा लुकआउट करेगा टावर। सपोज आप एप्रोन पे पार्कड हो, ठीक है, आपका डिपार्चर टाइम था 10 o'clock, बट ड्यू टू सम रीजन यू नीड टू डिले विथ 10 to 15 minutes। भले आप एप्रोन पे खड़े हो, आप एप्रोन को कॉल करके नहीं बताओगे कि हमारे फ्लाइट प्लान में चेंज है। एप्रोन को इससे मतलब ही नहीं है, वो तो ग्राउंड का मूवमेंट देख रहा है। तो आपके फ्लाइट प्लान के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन होगा, दे विल बी टेकन केयर बाय द टावर्स कि सर देयर इज अ डिले ऑफ 15 minutes, सो दैट दे कैन मैनिपुलेट द रनवे थिंग्स। वो किसी दूसरे को क्लियरेंस दे देगा कि अच्छा 5 मिनट के लिए टाइम है, चलो दूसरा कोई आगे बढ़ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, सो फ्लाइट प्लान के रिगार्डिंग कोई भी चेंज हमेशा टावर। एंड देन aerodrome approach control, by the name it is visible to you, and by the name it is clear to you, that is known as approach। अब approach का क्या काम है? along with the tower, ठीक है, initial climb and departure plus the vicinity of aerodrome, ठीक है, कंट्रोल जोन, कहीं से कोई उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उनको इनिशियल गाइडेंस कि इस एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए आप कैसे कैसे पाथवे को फॉलो करोगे, कौन से एयर ट्रैफिक सर्किट को फॉलो करोगे, कैसे आपको सीक्वेंसिंग करनी है, देन हाउ यू कैन लैंड, विच रनवे यू कैन लैंड, वेयर यू नीड टू लैंड, such things will be taken care by the approach control। And to call the approach control, we say approach, Mumbai approach, Mumbai approach, ठीक है, APP, मुंबई APP, तो मुंबई अप्रोच, दिल्ली अप्रोच, बैंगलोर अप्रोच। एंड देन इट कम्स एरोड्रोम, सॉरी, एरिया कंट्रोल सेंटर। दिस इज नॉट एरोड्रोम कंट्रोल सेंटर, एरिया कंट्रोल सेंटर। दिस ऑफिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल, ठीक है, उसको लिखते हैं ACC, मुंबई कंट्रोल, दिल्ली कंट्रोल, ठीक है, कोलकाता कंट्रोल। इसका क्या ड्यूटी रहता है? जस्ट हैव अ लुक ओवर द चार्ट्स, इसको मैं चार्ट से शेयर करूंगा, देन यू कैन गेट इट परफेक्टली, ठीक है। एरिया कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? एक लार्ज एरिया में, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, चार्ट विजिबल है, आई एम शेयरिंग दिस ऑन स्क्रीन। देखो चार्ट विजिबल है आप सबको? यस सर। ठीक है। नाउ मुंबई जो एयरपोर्ट है, दे आर वेरी बिग, इनके पास है एरिया कंट्रोल सेंटर। अब मुंबई का जो एरिया कंट्रोल सेंटर है, दे विल ऑब्जर्व द एरियाज ऑफ पुणे, औरंगाबाद, ये सोनगढ़ वाला रीजन, ठीक है, भावनगर, मीन्स नॉट ओनली मुंबई, द मुंबई कंट्रोल विल हैव अ लुक आउट ऑन अ ह्यूज एरिया, ठीक है, जहां पे कोई पासिंग ऑन फ्लाइट रहेगा, कोई नॉर्मली ट्रांजिट करता हुआ फ्लाइट रहेगा, तो उसको ओवरऑल गाइडेंस या उस पे जो मॉनिटरिंग रखेगा, दैट विल बी टेकन केयर बाय मुंबई, मुंबई के कंट्रोल ऑफिस से, ठीक है। सो यू कैन सी किसी एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिस अवेलेबल हैं, ये आपको चार्ट में दिया हुआ रहेगा इन ग्रीन कलर। मुंबई के पास कौन कौन से ऑफिस अवेलेबल हैं? जस्ट हैव अ लुक आउट, ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल, ठीक है, और उनके यूजुअल फ्रीक्वेंसी यहां पे दिए हुए हैं। पुणे के पास सिर्फ टावर है, इसके पास कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट पुणे के ऊपर से क्रॉस करेगा, उसको पुणे लैंड नहीं करना है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट एक ऑन रूट आ रहा है, तो उस ऑन रूट फ्लाइट पे जो नजर रखेगा, मॉनिटर्ड अंडर मुंबई कंट्रोल, ठीक है, सिर्फ मॉनिटर रखेगा, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस ऑब्जर्व करता रहेगा कि वो फ्लाइट जा रहा है उधर से, दैट्स ऑल, ठीक है। सो किसी भी एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिस अवेलेबल है, ये आपको चार्ट में ग्रीन कलर में दिया हुआ रहेगा। एंड किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिस एस्टेब्लिश किए जाएंगे,
दिस डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय दैट एयरपोर्ट। कोई एयरपोर्ट कितना पैसा कमा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, ज्यादा पैसेंजर अप डाउन कर रहे हैं, तो आपको एरिया इनलार्ज करने पड़ेंगे। एरिया बढ़ाओगे, ऑपरेशंस बढ़ेगा, एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे, आपको ज्यादा एटीसी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मॉनेटरी थिंग्स। जो जितना कमा के देगा उसको उतनी फैसिलिटी मिलेगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब नहीं सोचना है किस एयरपोर्ट पे कितने सारे एटीसी अवेलेबल है, लिखा रहेगा। और एज आई वाज सेइंग कि हमको यूज करना है W4, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी हमने बोला था, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है। कौन सा ऑफिस किस फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल है, दैट इज गिवन हेयर इन द चार्ट। एम आई क्लियर ऑन दिस टॉपिक? Now you can understand. So any one of you can let me know how many ATC offices are there in Ahmedabad? कौन कौन से अवेलेबल हैं? I had zoomed to the screen. Let me know please. टावर अप्रोच एंड कंट्रोल सर। ठीक है, टावर अप्रोच एंड कंट्रोल, वेरी गुड। आई विल कम टू ये जो आप डेटिस वाला देख रहे हैं उस पर भी मैं आता हूँ। टू जयपुर, हाउ मेनी ऑफ देयर आर इन जयपुर? टावर एंड अप्रोच। ठीक है, ओके। Now you might have asked, sir, एक डेटिस बार बार देख रहा हूँ ग्रीन कलर में, what is this? This is not any ATC office, ठीक है। अप्रोच एंड टावर। हाँ, good. Approach and tower is there in Jaipur. Got it. Now, ये जो आप डेटिस देख रहे हो, that is not a... Yes, go ahead, go ahead. Screen is not visible. Okay. It suddenly went out or what happened? Because while shading to the Ahmedabad and Jaipur, it was visual, right? How it went? No, okay. अच्छा, ठीक है, ठीक है। नाउ देखो, इससे एक चीज और सीखने को मिलती है। why RT is this much of a precious thing you can say, and why this is so important? RT के लिए जब कम्युनिकेट ही करना है तो पायलट तो कैसे भी बात कर सकता है, इसको इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दिया जाता है? वी आर लिविंग इन अ 5G एरा, राइट? अब भले 5G के नाम पे ये लोग 3G 2G चला रहे हैं, आई कैन नॉट से, क्योंकि मैं तो बैड नेटवर्क झेल ही रहा हूँ। रिसेंटली आई हैड मूव टू पुणे एंड इन दिस एरिया आई एम सफरिंग अ लॉट, स्पेशली इन नाइट, ठीक है। वी आर लिविंग इन अ 5G एरा ऑफ मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, जो लैंडलाइन वाईफाई लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5.5 गीगाहर्ट्ज है, आधा जनरेशन आगे देन 5th गीगाहर्ट्ज। स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग ऑन नेटवर्क। कई बार मेरा वॉइस कट हो जाता है, कई बार मेरा स्क्रीन शेयर कट हो जाएगा, राइट? वी आर स्ट्रगलिंग हेयर समहाउ। हाँ, कोई अच्छा नेटवर्क है जैसे एयरटेल वगैरह का अच्छा काम करता है, so you might see some less problems, but still we are struggling somewhere. Just think about aircraft. उनके पास तो 90s 80s के जमाने का VHF कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो तो 5G भी नहीं हुए। उनका मेगा हर्ट्ज में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 1182.137 मेगा हर्ट्ज, अपना तो गीगा हर्ट्ज है। तो गीगा हर्ट्ज में होने के बाद, लैंडलाइन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होने के बाद, जब हम लोग इतना सफर करते हैं, थिंक अबाउट एयरक्राफ्ट, वहां तो कम्युनिकेशन में कितना ज्यादा प्रॉब्लम आता है। दैट्स व्हाई अ प्रोटोकॉल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द आरटी कि ऐसे ऐसे बात करो ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। उनके पास लेंदी बात करने का टाइम नहीं है, उनके पास चीजों को डिस्कस करने के लिए एनफ टाइम नहीं है, बात करते करते बीच में आउट हो जाता है। एंड इफ यू आर वर्किंग रियली ऑन द लाइन, अगर आपने कभी कम्युनिकेशन सुना होगा
बहुत ज्यादा नॉइज रहता है ऑन अ VHF कम्युनिकेशन, आपको इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं आएगा बात करके, यू विल स्ट्रगल इन हियरिंग, थोड़ा ना थोड़ा इशू रहेगा ही, बहुत ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहता है। इसी के लिए RT में प्रोटोकॉल बनाए गए, ठीक है, कि आपको इसी फिक्स्ड वे में बात करनी है सो दैट योर कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिव। नाउ लेट मी नो इफ स्क्रीन इज विजिबल नाउ। रीडेबिलिटी चेक वाला स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द टॉपिक दैट इज नोन एज रीडेबिलिटी चेक, ठीक है। द मोस्ट कॉमन थिंग वी आर डूइंग in the airfield, that is readability check, plus in our classes, that is our routine. क्या? From tomorrow onwards or once you plan to get admitted here, आप अपना कोई ना कोई hypothetical registration नाम रख लो, like your name is Azad, so you can write a Victor Tango Alpha Juliet Delta like this, ठीक है? Someone can write their name like Sierra Alpha India like this. So you can change your name on Microsoft Teams, ठीक है? आप एक हाइपोथेटिकल कॉल साइन रख लो अपने लिए। एंड आज हम लोग रीडेबिलिटी चेक का फॉर्मेट देख लेंगे, प्लस टुमारो ऑनवर्ड्स व्हेनेवर वील ज्वाइन, व्हेनेवर वील गैदर्ड, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी कैंडिडेट शैल बी कि आप एक रीडेबिलिटी चेक करोगे विद मी, ठीक है। द मोमेंट यू हैव ज्वाइंड द क्लास यू नीड टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक, and that is for sure, that is must compulsory for all, you cannot skip this portion, ठीक है। because one of my strategy is रीडेबिलिटी चेक करते करते ही मैं कम से कम 10 से 12 टॉपिक क्लियर करता हूं, ठीक है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय दिस प्रैक्टिस, यू आर गोइंग टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। जब तक में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तक पहुंचेंगे ना, दैट विल टेक 7 to 8 days, ठीक है। तो जब तक में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तक पहुंचेंगे तब तक में आपके आंसर राइटिंग की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, आपको आंसर राइटिंग करना आ जाएगा। तो रीडेबिलिटी चेक को स्किप नहीं करना है, ठीक है। डजंट मैटर आप क्लास के बीच में ज्वाइन कर रहे हो, डू इंटरप्शंस एंड परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक। सपोज आप 5 मिनट लेट हो गए, मैं ऑलरेडी लेक्चर ले रहा हूँ, नॉट नेवर अ प्रॉब्लम, इंटरप्ट करो, रीडेबिलिटी चेक करो, ठीक है। वो भी एक अच्छी चीज है, वहां पे हम आपको स्टैंड बाय सिखाएंगे कि हाउ टू गो विथ स्टैंड बाय, ठीक है। सो जब भी ज्वाइन करो रीडेबिलिटी चेक करो, ठीक है। डोंट फियर कि बीच में आया, लेट हो गया, क्या बोलेंगे, क्लास चल रहा है, हाउ टू डिस्टर्ब, नो, नेवर प्रॉब्लम। डन। नाउ हाउ टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक। सपोज वी हैड टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक with this example only, let's say मुंबई ग्राउंड, ठीक है। हमको अपना एयरक्राफ्ट एक पार्किंग स्टैंड से दूसरे पार्किंग स्टैंड पे मूव करना है फ्रॉम 12 to 14, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि स्टैंड नंबर 12 से 14 पे ले जाना है। फॉर दिस आई नीड टू कॉन्टैक्ट मुंबई ग्राउंड, राइट? बट बिफोर आस्किंग फॉर अ कॉल वी नीड टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक। पहले कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे। सपोज आप मुझे कभी कॉल कर रहे हो, तो जैसे ही मैं आपका कॉल उठाता हूं तो आपके मोबाइल में एक स्लाइट वाइब्रेशन होता है या फिर एक टोन आएगा या फिर आपके मोबाइल में टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इट इंडिकेट्स कि आपका कॉल पिक कर लिया गया है। बट ऑन रेडियो ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है, आपका कॉल लगा कि नहीं लगा, टाइमर का कोई व्यवस्था नहीं है, टोन का कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? रिस्पॉन्स से। अगर रिस्पॉन्स आया मीन्स हमारा कॉल लगा, रिस्पॉन्स नहीं आया कॉल नहीं लगा, ठीक है। So we want to perform readability check with Mumbai ground. For an example, the call sign of my aircraft is Alpha November Kilo. ठीक है, Victor Tango Alpha November Kilo, as with my name. Now, I want to perform a readability check with Mumbai ground. How that will go? I will say Mumbai ground, Victor Tango Alpha November Kilo. Then I told frequency, right? On 123.5. Hold a second, I'll come to this, ठीक है। ऑन फ्रीक्वेंसी, कौन से फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हो? मुंबई ग्राउंड का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 123.5। सो वी विल से ऑन 123.5।
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर. इसका रीडेबिलिटी चेक से कोई लेना देना नहीं है. आप चाहो तो बोलो, आप चाहो तो नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है. बट क्या होता है, सपोज आपका दोस्त कई बार बोलता है कि मैं मुंबई घूम के आया. दैट टाइम यू कैन से ना, वो बोलेगा कि आई वेंट टू गेटवे ऑफ इंडिया एज वेल. देयर यू कैन आस्क कि अच्छा एक बात बताओ, इफ यू हैव वेंट टू गेटवे ऑफ इंडिया, लेट मी नो कि ताज होटल किस साइड में पड़ता है. यू आर चेकिंग ना कि अगर तुम सच में मुंबई गए हो, देन लेट मी नो कि ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया के कौन से साइड में है. सिमिलरली you are asking for readability, so you can give a number to them. if you really reading me well, तो मैंने जो नंबर बोला है बोल के बताओ. ठीक है. so this is the strategy to make readability effective. if you want you can tell, if you don't want you can skip, never a problem. ठीक है. ये आपके इफेक्टिव रीडेबिलिटी चेक करने का एक तरीका है कि कोई भी एक रैंडम नंबर बोल दो. आप सबने गांव में नाटक या कोई भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखा होगा या कोई भी स्टेज शो टाइप के देखे होंगे. वहां पे क्या करते हैं, जो माइक टेस्टिंग करते हैं स्टार्टिंग में, हेलो 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग, ऐसा बोलते हैं ना रेगुलरली. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्प्रेडिंग जस्ट रैंडम नंबर्स. एंड क्या कर रहे हैं, माइक टेस्टिंग. हम लोग भी तो माइक टेस्टिंग ही कर रहे हैं कि हाउ डू यू रीड, मेरा माइक काम कर रहा है कि नहीं. देन यू कैन से how do you read. This is a standard phrase of readability check, never mixed with anything. आप कभी नहीं बोलोगे how are you reading, how do you read me. कई बार लोग बोलते हैं, हैबिचुअल होते हैं how do you read me बोलने का. how are you reading me, how do you read me. no, only 4 words, how do you read. don't include me, never include are, never include is, am, anything. how do you read. so readability check का standard format क्या होगा, you all can make a note because from tomorrow onwards you need to uh, speak in the class. ठीक है, तो आप अपने नोट पे इसको लिख सकते हो. if I contact Mumbai ground Victor Tango Alpha November Kilo on 123.5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, how do you read. यहाँ पे मुंबई ग्राउंड क्या है, W1. What is W2? Your call sign. Then W4, the frequency I'm using, and then the purpose of my call. I'll come to your doubt. Don't worry. एक डाउट आप लोगों को रहेगा, मैं जस्ट इमीडिएट आता हूं उस पर रिटर्न. डोंट वरी. एंड देन जब उधर से रेस्पॉन्स आएगा, ग्राउंड भी तो बोलेगा कि यस मैं आपको अच्छे से सुन रहा हूं. So for ground, your aircraft is W1. So they will say Victor Tango Alpha November Kilo as a W1 means आपका call sign. And then they will say Mumbai ground W2. And then they can say read you 5, that is W3. ठीक है. Now उन्होंने क्या बोला, Victor Tango Alpha November Kilo Mumbai ground read you 5. ठीक है. Now रीड यू 5 को आप रिप्लेस कर सकते हो विद रीडिंग यू 5, दैट इज एक्सेप्टेबल. यू कैन से रीडिंग यू 5. ठीक है. सो आइदर यू कैन से रीड यू 5 और यू कैन से रीडिंग यू 5, इट वर्क्स. बट यहां पे चेंज नहीं करना है. ऑलवेज हाउ डू यू रीड, हाउ आर यू रीडिंग मी, नो. ठीक है. कई बार लोगों को बोलने की आदत होती है मुंबई ग्राउंड दिस इज विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो. ठीक है. हाउ डू यू रीड मी, दिस इज, दैट इज, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. या फिर आप डे टू डे बेसिस पे देखते होगे लोगों को बोलने की आदत होती है मुंबई टावर विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो गुड मॉर्निंग. या फिर जब वो लास्ट में कॉल करते हैं तो लास्ट में वो बोलेंगे गुड डे या फिर बोलेंगे जय हिंद. ठीक है. These things had came into civil aviation by the military pilots. अपने सिविल एविएशन के आधे से ज्यादा पायलट मिलिट्री से हैं. ठीक है. तो वहां पे वो अपने सीनियर को सैल्यूट करते थे. बट इन सिविल एविएशन सैल्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, ये सब नहीं बोलना है. ठीक है. आप सबने नोटिस किया होगा कई बार. दिस इज वेरी कॉमन because pilots belongs to military foreground or most of the pilots are military retired pilots.
और some of the civil pilots are also trained under military pilots first, so they had their habits. लेकिन सिविल एविएशन में सैल्यूटेशन बोलना मना है, दैट इज अ रूल, ठीक है। आई विल कम ऑन अ टॉपिक, जब आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। सैल्यूटेशन इज नॉट मैंडेटरी, रेस्ट्रिक्टेड, नो सैल्यूटेशन, सर मैडम ये सब बोलना ही नहीं है, ना ही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कुछ नहीं, सिंपल स्टिक टू योर टॉपिक, ठीक है। नाउ यू कैन आस्क, सर आपने रूल तो पढ़ाया W1, W2, W3 एंड W4, बट आपने W4 को W3 से पहले प्लेस कर दिया, व्हाई? सी, रूल्स ऑफ 4W, एज आई वाज सेइंग, दिस इज नॉट अ क्रोनोलॉजी। ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है कि W1 पहले, W2 बाद में, फिर W3 एंड W4। इसके लिए जो गाइडेंस है, दैट इज योर कॉल शैल हैव ऑल द 4Ws। आपके कॉल में ये चारों चीजें दिखनी चाहिए, हाँ। बट whenever you are making initial introduction with any ATC, first you need to follow the rules of W1 and W2। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब एक बार कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है तो हम सिर्फ W3 डिस्कस करते हैं एंड लास्ट में W1 से हम लोग कॉल साइन क्लोज करते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना ही जानो कि आपको W1, W2, 3, 4 यूज करना है इन अ क्रोनोलॉजी वेयर W4 can be interchanged with W3. Why? To make your call better format and as per your suitability. Better formatting कैसे हुआ? ऐसे कि जैसे ही हमने पहले 3W फिनिश कर लिए अपने, अब हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ पर्पस डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट अच्छा हो गया, क्या कि जो भी आइडेंटिफिकेशन वाला चीज था उसको हमने पहले फिनिश कर लिया, अब बाद में बैठ के मुद्दा डिस्कस करते रहेंगे कि ग्राउंड रन का परमिशन दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। सो सच थिंग्स आर फॉर बेटर फॉर्मेटिंग। देन वन मोर थिंग आई हैड रिटन, व्हाट? suitability, how it is suitable to us, have a look how it is suitable to us. We are we have been given with a chart in RT, right? आपको चार्ट्स मिलते हैं, तो जैसे ही आप चार्ट्स देखोगे कि मुंबई में ग्राउंड अवेलेबल, सपोज आपको क्या अपना रिक्वायरमेंट था, ग्राउंड रन करना है, तो आप उसके लिए चेक करोगे कि मुंबई में कितने सारे टावर अवेलेबल है या कितने सारे एटीसी ऑफिस अवेलेबल है। तो जैसे ही आपने देखा कि मुंबई के पास ग्राउंड है, यहीं पे आपको इमीडिएट मिलता है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो व्हाई नॉट वी प्लेस आवर फ्रीक्वेंसी बिफोर देन द पर्पस। हम लोग फ्रीक्वेंसी को पर्पस से पहले पुट कर सकते हैं, राइट। और जो गाइडलाइन है बाय द इकाओ, उसने तो बोला ही नहीं कि आपको रूल्स ऑफ 4W क्रोनोलॉजी में रखना है, वहां पे हमको बस बताया गया है कि 4W हैं, कैसे किसको प्लेस करना है ये तो गाइडलाइन है ही नहीं। सो वी आर फ्री टू मेक आवर कॉल सुटेबल एंड बेटर, वी कैन प्लेस W4 बिफोर W1। होप आई एम क्लियर ऑन दिस टॉपिक। रीडेबिलिटी चेक का फॉर्मेट समझ में आया सबको? यस नो, ठीक है। सो टुमारो ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू विल ज्वाइन, do the readability check first, and for my name I'll write some of the ATC, ठीक है। मैं अपना भी नाम चेंज करके किसी न किसी ATC के नाम पे रख लूंगा, so that you can find me as a station, ठीक है। there you can give a call in a good way. So this one is the readability check, and I think this much is enough for today. We shall not cover many of the topics. नहीं तो कल परसों में जो स्टूडेंट आएंगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो इन दीज 3 days आई हैड कंफर्म 2 lectures. ये सारे बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, दैट्स व्हाई आई हैड एक्सप्लेन्ड, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन इन हाफ एन आवर टाइम। सो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने लेक्चर 2 तक के सिलेबस को कवर किया है, डन। एंड विल सी यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, व्हेनेवर यू विल बी कंटिन्यू टू ज्वाइन। कल तो सेम 9 o'clock क्लास रहेंगे डेली, ठीक है। मीटिंग आईडी सेम रहेगा, जो भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हमने शेयर किया इन व्हाट्सएप ग्रुप, द सेम मीटिंग आईडी विल बी केप्ट ऑफ फर्दर,
ठीक है, फॉर इंटायर मंथ। तो आपको बार बार मीटिंग आईडी, मीटिंग लिंक, पासवर्ड ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द सेम मीटिंग आईडी विल बी केप्ट ऑफ, all the sessions is being recorded, so don't be feared of losing any of the classes। आपके शेड्यूल में भी क्लासेस होते हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराओ कि आपका कोई भी टॉपिक छूट जाएगा। Even after this, I want to share one more beautiful things with you. What is that? आप जब भी लेक्चर प्लान देखोगे, व्हाट आई एम शेयरिंग टू यू, वंस यू विल गेट एडमिटेड, आपको ये डेफिनेटली शेयर कर दिया जाएगा। अब देखो, आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है, जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं उसको फिनिश होने के बाद हर एक लेक्चर में हमने मॉक प्रैक्टिस के लिए टाइम रखा है। ठीक है, यू कैन से ऑन लेक्चर नंबर 10, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? यस सर, स्क्रीन विजिबल। नाउ यू कैन सी लेक्चर नंबर 10, टोटल 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें एक टॉपिक तो हमारा प्रैक्टिस है। लेक्चर 11 प्रैक्टिस, 12 प्रैक्टिस, 13 प्रैक्टिस, 14 मॉक प्रैक्टिस। सो इन एवरी क्लासेस देयर इज मॉक प्रैक्टिसेस, सो नेवर गेट फियर्ड ऑफ लूजिंग एनी टॉपिक, नेवर। ठीक है, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। आरटी का इतना सिलेबस ही नहीं है कि 1 महीने में कवर नहीं हो। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग सेशंस आर देयर। नहीं समझ में आया क्लास के बीच में, सपोज वी मूव फॉरवर्ड टू 5 to 6 लेक्चर्स, आपने रिवीजन करी, आपको कोई डाउट आया, वहीं इंटरप्ट करो। ठीक है, 5वें 6ठे दिन रुक के बोलो कि सर मुझे ये टॉपिक फिर से पढ़ाओ, एंड इट नेवर अ प्रॉब्लम। वो कई बार होता है कि स्कूल में आपको टीचर ने बोल दिया या कॉलेज में टीचर ने बोल दिया कि बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पे बीच में डिस्टर्ब करने की फैसिलिटी है ही नहीं। आप बीच में डिस्टर्ब करो, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्टर्बेंस, डोंट वरी, आप करो। व्हाई? बिकॉज हेयर यू आर डूइंग ट्रेनिंग। ये आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, ये आपको ट्रेन कर रहा हूँ। पढ़ाई तो आपने कर ली, नॉलेज आपके पास है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तो जहां प्रॉब्लम हुई वहीं रोको। ठीक है, so from 7th Jan we'll be really focused as per lecture plan, we'll cover as much as topic we can perform in a day। डेली नाइट में क्लासेस रहेंगे 9 to 11। ठीक है, समटाइम्स इट विल बी फिनिश्ड ऑन अ 1.5 hour ओनली। ठीक है, 2 घंटे कई बार ज्यादा लेंथी टॉपिक पढ़ाने में बोरिंग होने लगते हैं, सो आई विल कवर इट ऑन 1.5। 1.5 घंटे का क्लासेस तो मान के ही चलो डेली रहेगा। डेली 2 से 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे, and we'll finish all of our plan in maximum 25 days। ठीक है, you will be chased till your examination, the moment you will be taking admission here। आपका पीछा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जामिनेशन रहेगा तब तक आपकी प्रैक्टिस या मॉक्स करवाए जाते हैं। कई बार तो स्टूडेंट पीछा छुड़वा लेते हैं मेरे से कि सर अब मॉक हो गया, अब खुद से प्रैक्टिस करने दो। ठीक है, तो दैट मोमेंट्स विल कम, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपके एग्जाम होने तक आपके लिए क्लासेस अवेलेबल रहेंगी हमेशा। व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तो पब्लिक के लिए इनरोलमेंट ग्रुप, दे आर हैविंग 100 और मोर देन 100 अटेंडीज। देयर आर अनदर सब ग्रुप जहाँ पे 12 से 13 लोग हैं, वहाँ पे वही लोग हैं जिनका एडमिशन हुआ है या फिर किसी न किसी वे में दे आर कंटिन्यू फॉर द प्लान। ठीक है, या फिर पिछले स्टूडेंट्स जो कि पिछले अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए तो वो आगे के लिए कंटिन्यू है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट आ गया है, उनका लाइसेंस नहीं आया तो अभी तक ग्रुप में अवेलेबल है, कुछ दिन में वो लोग ग्रुप छोड़ के निकल जाएंगे। तो वहाँ पे मैक्सिमम 10 से 12 स्टूडेंट आपको मिलेंगे। वहाँ 24/7 आई एम अवेलेबल। कभी भी डाउट हो स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन ड्रॉप करो। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, डिस्टर्बेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कई बार लोग पूछने में शर्माते भी है, देयर आर हेजिटेशंस, दे आर बीइंग शाई ऑफ, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 लोगों में क्या शर्माना। ठीक है, सो सच थिंग्स आर अवेलेबल देयर, एंड फ्रॉम 7th Jan मैं किसी भी पब्लिक ग्रुप पे नोटिफिकेशन प्लेस करना बंद कर दूंगा। आई विल सजेस्ट एवरीवन टू सिंपली ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप belongs to Kaushal Academy so that you can get aware of the notifications and further classes। ठीक है, fees as I already told it is 4500, you can pay and you can join there। ठीक है, study materials will be shared to you immediately once you take admission। ठीक है, ड्राइव लिंक पे सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं जो कि हद से ज़्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट उतना पढ़ भी नहीं पाते। ठीक है, सो सच थिंग्स आर अवेलेबल एंड दैट विल बी शेयर्ड टू यू। Done? Any feedback, any doubt, any discussions, you can ask me personally on WhatsApp। ठीक है,
you need to discuss on the payment things, you need to ask for the payment mode, you can discuss personally me in WhatsApp. And for doubts and anything, I'm always available. मेरा same phone number है on every places, you can contact me anywhere. Done. So it's enough for today. I'm closing the class here only. We'll see you tomorrow 9 o'clock. ठीक है? कल से हम लोग कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम 7th Jan एक्चुअली हम लोग कंटिन्यू फर्दर करेंगे फॉर द इंटायर मंथ प्लानिंग. ठीक है? सो इट्स इनफ फॉर टुडे. I'll see you off now only. ठीक है? Good night for today. Bye bye. ठीक है आजाद, बलबन, how is it? Going good? Yes, sir. ठीक है. Good night, sir. Okay. So anything you are having, let me know. Tomorrow, day after tomorrow, from 7th Jan, I am continuing the class. So we'll be definitely continuous from 7th Jan. Till the time, थोड़ा relaxation time देता हूँ. Done. Good night for today. Bye bye.